آج تو ماں چڑیا کو دانا صبح سویرے ہی مل گیا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے آج میٹھا پھل بھی لے کر جانا چاہتی تھی۔ ماں چڑیا دانا لیے ایک بڑے پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دانے کے ساتھ ساتھ اگر میں پھل بھی لے جاؤں تو میری گڑیا بیٹی بہت خوش ہوگی۔ اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے ماں چڑیا پھر سے اڑتی ہے۔ ماں چڑیا اڑتی اڑتی انسانوں کی بستی کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک انگور کی بیل تھی۔ ماں چڑیا انگور کی بیل سے ایک انگور کا دانہ لینے کے لیے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ انگور تو میری بیٹی کو بہت پسند ہے۔ میں کھلاتا ہوں تمہیں میٹھا انگور۔ ایسا کہتے ہوئے ظالم شکاری ایک پتھر اٹھا کر زور سے چڑیا کی طرف پھینکتا ہے۔ پتھر سیدھا ماما چڑیا کے سر پر لگتا ہے، خون بہتا ہے۔ ماں چڑیا چکرا جاتی ہے۔ گر جا ابھی گر جا بھی اب۔ مگر ماں چڑیا کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی تھی۔ وہ موت سے لڑتی ہوئی وہاں سے اڑتی ہے۔ وہ چکراتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اپنی ماں کے سر سے خون بہتا ہوا دیکھ گڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ مما مما کیا ہوا؟ مما آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے سر پر چوٹ کیسے آئی؟ میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا تھا انسان کا۔ میں نے ایک دانہ انگور کا کیا توڑ لیا، اس نے تو مجھ سے میری زندگی ہی چھین لی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی بلبل آنٹی کو بلا کر لاتی ہوں۔ سمے نہیں ہے بیٹی، میں یہاں تک بہت مشکل سے آئی ہوں۔ کاغذ اور پینسل لاؤ بیٹی۔ گڑیا کاغذ اور پینسل لے آتی ہے اور مما چڑیا ایک چٹھی لکھتی ہے۔ مما آپ اس پر کیا لکھ رہی ہیں؟ بیٹی، پہاڑوں والے جنگل میں چلی جانا میرے بعد۔ تم وہاں جا کر اپنے انکل کبوتر کو یہ چٹھی دے دینا۔ وہاں کالو تایا اور مٹھو ماما بھی ہوں گے۔ وہ سب آپ کی رکشا کریں گے۔ میرا بچپن ان سب کے ساتھ ہی گزرا ہے۔ وہ سب تم سے بہت پیار کریں گے۔ ایسا کہتے ہوئے ماں چڑیا لمبی سانس لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ گڑیا ابھی چھوٹی تھی اور اس کے دکھ بہت بڑے۔ وہ ان دکھوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ اپنی مما کی الماری سے کچھ ضروری چیزیں لیتی ہے اور وہ چٹھی اپنی چھوٹی سی چونچ میں لے کر اڑتی ہے۔ وہ شام سے پہلے پہاڑوں والے جنگل میں پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر راستے میں اسے پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی پینے کے لیے ندی پر رکتی ہے۔ وہ ندی سے ٹھنڈا پانی پی لیتی ہے۔ وہاں بیٹھی ہوئی ایک بوڑھی فاختہ گڑیا سے پوچھتی ہے، ارے بیٹی، اتنی گرمی میں آپ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ گڑیا بوڑھی فاختہ کی بات سنتے ہی رونے لگتی ہے اور بولتی ہے، میری مما کو آج ایک انسان نے انگور کا ایک دانہ توڑنے پر مار دیا۔ مما نے یہ چٹھی اپنے دوستوں کے نام لکھی ہے اور مجھے ان کے پاس بھیجا ہے۔ یہ انسان بہت ظالم ہوتا ہے۔ انسان کیا جانے کہ ہم پکشیوں کے دکھ بھی انسان کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ خوشیوں بھرا گھر اجاڑ دیتے ہیں ظالم انسان۔ بیٹی، ماں کے سوا کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ۔ ایک ماں ہی بچوں کو پال سکتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا کہتے ہوئے بوڑھی فاختہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گڑیا بھی اپنی راہ لیتی ہے۔ وہ دوسرے جنگل پہنچ جاتی ہے۔ پیڑ پر بیٹھے ہوئے کووں کے ایک جوڑے کے پاس جا کر گڑیا رکتی ہے۔ تاؤ کوے، کیا یہ پہاڑوں والا جنگل ہی ہے؟ ہاں چھوٹی چڑیا، یہ جنگل پہاڑوں والا جنگل ہی ہے۔ یہاں پر کبوتر چاچا کا گھر کہاں ہے؟ وہ سامنے جاؤ اور وہاں بڑے پیڑ کے پیچھے ہے کبوتر کا گھر۔ گڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو، مجھے تو یہ چڑیا رانو چڑیا کی بیٹی لگ رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ ساتھ ماں بھی نہیں تھی، ایسا لگ رہا ہے یہ اس جنگل میں کسی کے پاس رہنے آئی ہے۔
चलो चलो जल्दी से घर चले जाएं, कहीं हमारे ही गले ना पड़ जाए। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, ये चिट्ठी मम्मा ने आपके नाम लिखी है। तुम रानो चिड़िया की बेटी हो? हाँ हाँ अंकल, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी। कबूतर चिट्ठी पढ़ता है। मेरे दोस्त कबूतर, कालू कौवे और मिट्ठू, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये अभी छोटी है, इसे जीने के तौर तरीके सिखा देना। आप सबको अपना समझकर मैं इसे आपके पास भेज रही हूँ। क्या हुआ? रानो चिड़िया को क्या हुआ? मम्मा को इंसान ने मारता है, पत्थर मार। ये सुनकर कबूतर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी चाची लूसी कबूतरी बीमार है, और ये देखो, ये चिट्ठी कौवे और तोते के लिए भी है। तुम ऐसा करो, वो सामने कौवों के पास जाओ। और वैसे भी आपकी मम्मा उन कौवों के पड़ोस में ही रहती थी। शायद चिट्ठी पर आपका नाम मम्मा ने गलती से लिख दिया होगा। गुड़िया की इस बात के जवाब में कबूतर चुप रहता है और अपना सर आहिस्ता से हिला देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। गुड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी सामने कौवों के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। ताऊ ताऊ कौवे, क्या आप घर में ही हैं? थोड़ी देर बाद गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। आप तो वही आंटी हैं जिनसे मैंने कबूतर चाचा का घर पूछा था। मैंने तुम्हें कबूतर के घर का पता बता तो दिया था, अब क्या हुआ? ये चिट्ठी मेरी मम्मा ने आपके लिए लिखी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, क्लास में सबसे पीछे बैठा करती थी मैं। एक बार तो मैंने अपनी टीचर को मारा भी था। गोरी की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। कालू जी बाहर आओ। कालू बाहर आता है और चिट्ठी पढ़ता है। मगर इस चिट्ठी के शुरू में तो कबूतर का नाम लिखा है। छोटी चिड़िया, वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमारी पड़ोसन जरूर थी, मगर उसके संबंध कबूतर से ज्यादा थे। हाँ, वो तो इकट्ठे एक साथ दाना लेने जाया करते थे। इसका मतलब मम्मा भूल गई होंगी। हाँ, तू तो बहुत सियानी है छोटी चिड़िया, जल्दी समझ जाती हो। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती है क्योंकि रात का अंधेरा होने से पहले उसे वापस अपने घर पहुँचना था। रात को गुड़िया अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी चांद की तरफ देखते हुए रो रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा शायद आप भूल गई कि माँ के सिवा कोई नहीं बनता, कोई किसी गैर की रक्षा नहीं करता। माँ, मैं यहाँ ही खुश हूँ, मैं सब सीख लूँगी, मैं सब कर लूँ। अब मैं छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो गई हूँ। फिर गुड़िया अपने घर के अंदर आकर कुंडी लगाती है और सो जाती है। छोटा मिट्ठू तोता और उसकी माँ हरियाली तोती आज अमरूद ढूंढते ढूंढते जंगल के साथ किसान के खेत में चले जाते हैं। मिल गया, मुझे मेरे बेटे के लिए अमरूद मिल गया। दोनों माँ बेटा एक पेड़ पर अमरूद रखकर वहाँ बैठ जाते हैं। मम्मा, ये अमरूद आप खा ले। नहीं, ये अमरूद मेरा बेटा ही खाएगा, मैं दाना खा लूंगी। माँ बेटा बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे कि शिकारी का जाल आकर तोती के ऊपर गिरता है और माँ तोती जाल में फंस जाती है। मेरे बेटे भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, शिकारी आपको भी पकड़ लेगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, आपको मेरी कसम, मेरे बच्चे यहाँ से भाग जाओ। छोटा मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और शिकारी तोती को एक पिंजरे में कैद करके ले जाता है। शाम हो जाती है। छोटा मिट्ठू अकेला अपने घोंसले में बैठा हुआ रो रहा था। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, इससे तो अच्छा था वो शिकारी मुझे भी पकड़ कर ले जाता, मैं पिंजरे में आपके साथ तो रहता। छोटे मिट्ठू की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, ये तो छोटे मिट्ठू की रोने की आवाज़ है। मम्मा, छोटा मिट्ठू ज़रूर किसी मुसीबत में होगा, हमें उसकी मदद करना होगी। फिर माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटे मिट्ठू, तुम
क्यों रो रहे हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ को शिकारी ने पकड़ लिया। मेरी माँ मुझे ला दे, आंट मुझे ला दे। ये सुनकर चिड़िया भी रोने लग जाती है। ये इंसान भी बहुत जालिम है। कुछ पैसों के लिए हम पक्षियों को पिंजरों में कैद कर लेता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। बेटा, यहाँ अकेले रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा, दाना खा लो। नहीं, मैं माँ के बिना कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे माँ के पास जाना है। मिट्ठू को रोता हुआ देखकर कुकू भी रोने लग जाता है। मिट्ठू दोस्त, चुप कर जाओ। हम कल सुबह आपकी मम्मा को शिकारी से आजाद करवा कर ले आएंगे। कुकू की बात सुनकर छोटा मिट्ठू खुश हो जाता है। आप मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेटा, मैं और कुकू आपकी जरूर मदद करेंगे। फिर उस रात छोटा मिट्ठू चिड़िया के घर में ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया, छोटा मिट्ठू और चिड़िया का बेटा कुकू इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ हम इस पेड़ पर बैठे हुए थे जब शिकारी ने माँ को पकड़ा। तो फिर कुकू, वो सामने वाली बस्ती से ही शिकारी आया होगा। हमें उस बस्ती में जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे पिंजरे में कैद छोटे मिट्ठू की मम्मा अपने बेटे को उड़ता हुआ देखकर जोर जोर से आवाज लगाती है। चिड़िया, मिट्ठू और कुकू वहाँ आ जाते हैं। थोड़ी दूर शिकारी बैठा हुआ था। कुकू और मिट्ठू बेटा, आप यहाँ इस पेड़ पर बैठें, मैं शिकारी से बात करती हूँ। चिड़िया बहन, आप इस जालिम के पास न जाना, वो आपको भी पकड़ लेगा। मुझे उस शिकारी से बात करना ही होगी। चिड़िया शिकारी के पास जाती है। शिकारी, वो सामने पेड़ पर उस तोती का बेटा बैठा हुआ है। उसने रात से कुछ भी नहीं खाया। आप उसकी माँ को आजाद कर दें। चिड़िया की बात सुनकर शिकारी हंसने लगता है। हम इंसान हाथ आया शिकार कभी नहीं छोड़ते। हाँ, अगर वो छोटा तोता अपनी माँ के साथ पिंजरे में रहना चाहता है तो मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ। हम पक्षी कैद में मर जाते हैं। आप इंसानों को हमें पिंजरे में कैद करके क्या मिलता है? चिड़िया शिकारी की बहुत विनती करती है, मगर वो शिकारी चिड़िया की बात नहीं मानता। चिड़िया रोती हुई कुकू और छोटे मिट्ठू को साथ लेकर वापस घर चली जाती है। आंटी, क्या अब मेरी मम्मा हमेशा पिंजरे में ही कैद रहेंगी? बेटा, आप चिंता ना करें, मैं कल फिर से जाऊंगी, मगर कल मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। वो शिकारी तो आपको भी पिंजरे में कैद करने का सोच रहा था। दूसरे दिन छोटी चिड़िया उड़ती हुई फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, शिकारी ने तोती को पिंजरे में कैद कर लिया है। उसका छोटा सा बच्चा मर जाएगा। आप शिकारी से कहें कि तोती को आज़ाद कर दे। वो शिकारी बहुत बुरा है। वो हमेशा पक्षियों को पिंजरे में कैद करता है। चिड़िया, तुम राजा जी के पास जाओ और राजा जी से उस शिकारी की शिकायत लगाओ। माँ जी, क्या राजा मेरे जैसी छोटी चिड़िया की बात सुन लेगा? चिड़िया, राजा बहुत दयालु है। वो बहुत अच्छा राजा है। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। समय जाया किए बिना चिड़िया वहाँ से उड़ती है और राजा के महल के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। चिड़िया सोच रही थी कि वो कैसे महल के अंदर जाए। फिर चिड़िया को महल की छत के ऊपर से किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। चिड़िया उड़ती है और महल की छत की तरफ जाती है। चुप कर जाओ मेरे मुन्ने, चुप कर जाओ। देखो ये खिलौने, देखो ये घोड़ा, देखो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। राजा और रानी का बेटा रो रहा था। वो किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा था। चिड़िया उड़ती है और राजा और रानी के पास जाकर बैठ जाती है। राजा और रानी, अगर मैं लोरी सुनाऊं तो आपका बेटा चुप कर जाएगा। चिड़िया, अगर तुम मेरे बेटे को चुप करवा दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा दाना दूंगी। फिर चिड़िया छोटे मुन्ने को गले से लगाकर लोरी सुनाती है। सो जा सो जा, सो जा सो जा, राज दुलारे सो जा,
चांद से परियां आए अपने पंख फैलाएंगी सो जा छोटे राजा सो जा। छोटा राजा तो ऐसे चुप कर जाता है जैसे वो कभी रोया ही ना हो। ये सब देखकर रानी और राजा बहुत खुश होते हैं। सिपाही, चिड़िया जो मांगती है इसे दो, इसकी हर मांग पूरी करो। राजा जी, मैं ना दाना लूंगी ना पानी, मगर जैसे आपका मुन्ना रो रहा था ऐसे ही मेरी पड़ोसन तोती का मुन्ना कल से रो रहा है। मगर वो क्यों चिड़िया, तोती का मुन्ना क्यों रो रहा है? उसके बेटे को शिकारी ने पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया है। मैं उसके पास गई थी मगर वो ना माना। ये सुनकर राजा और रानी गुस्से में आ जाते हैं और अपने सिपाही को आदेश देते हैं। सिपाही, जल्दी जाओ, वो शिकारी, तोती का पिंजरा और वो जाल जिससे वो पक्षियों को पकड़ता है मेरे पास लेकर आओ। फिर सिपाही जाते हैं। शिकारी, जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। ये पिंजरा और अपना जाल भी ले लो, राजा जी का आदेश है। शिकारी डर जाता है। हरियाली तोती पिंजरे में से चिड़िया को देखकर चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, मेरा बेटा, मेरा मिट्ठू ठीक तो है? हाँ हरियाली, मैं आपको लेने आई हूँ। इस तोती को आजाद कर दो और एक बड़े पिंजरे में इस शिकारी को कैद कर दो और इसके जाल को आग लगा दो। रहम राजा जी, मुझ पर रहम करें। सिपाही तोती को आजाद कर देता है। तोती उड़कर चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। राजा जी, इस शिकारी को तब तक पिंजरे में कैद रखना जब तक ये वादा न कर ले कि फिर कभी पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करेगा। फिर चिड़िया हरियाली तोती को साथ लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चल देती है। छोटा मिट्ठू अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, अब हम दोबारा कभी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। बेटा, तुम्हारी आंटी चिड़िया ने शिकारी को पिंजरे में कैद करवा दिया है, अब हमें शिकारी का कोई डर नहीं। ये सुनकर कुकू अपनी मम्मा पर बहुत गर्व करता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।